Bismillahirrahmanirrahim. The topic for today's lecture is working capital management. ठीक है जी, तो इस क्लास के अंदर इस टॉपिक के अंदर we'll be covering the topic of working capital management. What topics will be covered? Precisely alternative working capital policies that can be adopted by different companies. What is meant by cash management? How cash management can be conducted? Inventory and account receivables management will be covered, trade credits, and bank loans. So these are the topics that will be covered during the course of this today's lecture. Okay, now before we discuss the working capital, we need to understand a few terminologies which are related to the working capital. First of all, let me give you an idea about working capital, what working capital is. It is basically how you manage your short-term finances. So two areas are covered in this working capital finance management. One is your current assets and the other are your current liabilities. Now, I hope कि जी आप सबको current assets का पता ही है क्योंकि बैलेंस शीट पर आप पढ़ चुके हैं. Current assets are those assets which are cash or which are intended to be converted into cash within short period of time. ठीक है, तो current assets में आपके पास कैश आ जाती है, इन्वेंट्री आ जाती है, अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं. ये सारी चीजें आपकी they are all of them make your current assets. And then current liabilities, वो those are liabilities which are payable within 1 year. एक साल के अंदर अंदर आपने जो liabilities पे करनी है वो आपकी current liabilities हो जाएंगी. तो here what we are concerned with in working capital management is कि जी we have to invest in a way कि जो हमारे करंट एसेट्स हैं वो हमारे दे आर ऑप्टिमली मेंटेन्ड. जब मैं कह रहा हूँ कि ऑप्टिमली मैनेज्ड, तो ऑप्टिमली मैनेज से मुराद ये है कि जी हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो दे शुड बी अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. ठीक है, अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा होंगे तो दैट मीन्स वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है. और अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट से कम होंगे तो वील बी इन ट्रबल कि हम अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकेंगे. सेम वे जब हम करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म हमने पेमेंट्स करनी है तो वी शुड हैव द फंड्स अवेलेबल. ठीक है, अगर हम अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फर्म जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो सकती है. तो इसलिए जो कॉरपोरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इसको फोकस करती हैं और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी हुई है जिसके अंदर जो कॉरपोरेट की परफॉर्मेंस है उसका जो है वो पॉजिटिव, यानी जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप देखा गया है विद कॉरपोरेट परफॉर्मेंस के. वो कंपनीज जो अपनी वर्किंग कैपिटल को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं वो उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर है कंपेयर टू दोज कंपनीज या जो अपनी वर्किंग कैपिटल को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे. तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. अच्छा जी, अब वर्किंग कैपिटल में व्हाट आर द थिंग्स. फर्स्ट when we talk about working capital तो नॉर्मली वी आर रेफरिंग टू करंट एसेट्स. ठीक है, करंट एसेट्स जो मैंने अभी आपको बता दी है कि जिसमें कैश है, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, इन्वेंट्री है और हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं. अच्छा जी, नेट वर्किंग कैपिटल, ये एक टर्म हमें एक फाइनेंस के अंदर सुनने को मिलती है, नेट वर्किंग कैपिटल. तो नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल current assets minus current liabilities. Okay, another term that we come across when we are you know covering the topic of working capital management is net operating working capital, NOWC. uh, ne- Net operating working capital is current assets minus current liabilities less notes payable. The difference between net working capital and net operating working capital is that in net working capital we consider all the liabilities, and it means current assets minus current liabilities, so all the current liabilities are considered. When we are calculating net operating working capital, we deduct from current assets we deduct all the current liabilities except
less means except notes payable. So notes payable is not considered while we calculate नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। तो ये कि इसमें एक ही डिफरेंस है नेट वर्किंग कैपिटल में और नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल में, कि इसमें आप नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल में आपने नोट्स पेबल को शामिल नहीं करना। अच्छा जी, जब कंपनी की हम बात करते हैं कि जी व्हाट इज द करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कंपनी की जो करंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की है, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज डिसाइडिंग द लेवल ऑफ ईच टाइप ऑफ करंट एसेट टू होल्ड। ठीक है, तो पहली चीज हम अपनी करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं कि जी कौन कौन से हमारे करंट एसेट्स होने चाहिए। ठीक है, एंड हाउ टू फाइनेंस करंट एसेट्स, और वो जो हमारे करंट एसेट्स होंगे उनकी फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी। So this is these two aspects are covered in current assets investment policy. Deciding the level of each type of current assets to hold, level of each type of current assets, कि जी कैश कितना होना चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल्स कितने होने चाहिए, इन्वेंट्री हमारे पास कितनी होनी चाहिए। अगेन जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव वेरी हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स, but at the same time we cannot afford to have करंट एसेट्स लेस देन आवर रिक्वायरमेंट, यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट उससे कम होंगे तो भी प्रॉब्लम है और उससे ज्यादा होंगे तो भी हमारे लिए वेस्टेज है। तो इसलिए हम यहाँ पे वी वांट टू हैव ऑप्टिमल लेवल। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में चार चीजें नॉर्मली जो है ना वो फोकस चार चीजों के ऊपर होता है कि अगर हम ये चार चीजें अच्छी तरीके से मैनेज कर लें तो हमारी चीजें जो है वो बेहतर हो सकती है, हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो एफिशिएंटली मैनेज हो सकता है। नंबर वन इज कंट्रोलिंग कैश। ठीक है, कैश इज नॉन प्रोडक्टिव एसेट, इसलिए नॉन प्रोडक्टिव है कि अगर कैश आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है तो नॉर्मली इट इज लाइंग इन अ करंट अकाउंट जिसपे आपको कोई कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो अगर आप बहुत ज्यादा कैश रख के बैठे हुए हैं तो यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्स। और ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास कैश की शॉर्टेज हो गई, बिल पे करने हैं या आपने जो है वो अपने जो सप्लायर्स को पे करना है और कैश आपके पास नहीं है, तो अगेन यू विल बी इन ट्रबल, आपको बोरो करना पड़ेगा, वो एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसलिए एक चीज तो ये कि आप अपनी कैश लेवल को प्रॉपरली मैनेज करें। सेकंड इज इन्वेंट्रीज। अगेन इन्वेंट्री इज ऑल्सो अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट। जितनी ज्यादा आपके पास इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं वो आपका पैसा ब्लॉक हुआ हुआ है। और बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री कैरी करने के और भी नुकसान आते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होगी तो उसमें फिर स्पॉइलेज होगी, थेफ्ट होगा। ठीक है, और एट टाइम्स ये होता है कि जी आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी थी वो आउटडेटेड हो गई, या नई टेक्नोलॉजी आ गए, नए प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ गए, अपडेटेड वर्जन आ गए, तो आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो ये सारे मसले हैं इन्वेंट्रीज के साथ, तो इसलिए आपने इन्वेंट्री को भी प्रॉपरली मैनेज करना है। So proper management of inventory is part of your working capital management. Third thing is account receivables. अब account receivables जो है वो आपके क्रेडिट सेल्स हैं। अगेन आपका पैसा यहाँ पे ब्लॉक हुआ हुआ है। ठीक है, जितना अरसा ये अकाउंट रिसीवेबल है उतना अरसा आपका पैसा ब्लॉक है। ये कन्वर्ट होगा कैश के अंदर तो आपको फायदा है। तो you cannot afford to have a very high level of account receivables। at the same time आप account receivables की एजिंग भी करते रहते हैं कि बहुत ज्यादा पुराने account receivables भी प्रॉब्लमेटिक हैं। एक तो पैसा बहुत अरसे से ब्लॉक हो गया, दूसरा जितने आपके अकाउंट्स रिसीवेबल जो है पुराने होते चले जाएंगे उसकी रिकवरी के चांसेस जो है वो कम होते चले जाएंगे। तो इसलिए द कंपनी हैज टू फोकस ऑन द अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। अब अगर हम लाइबिलिटी साइड पे चले जाएं तो मेन जो हमारे पास फोकस है लाइबिलिटीज के अंदर वो अकाउंट पेबल आ जाता है। ठीक है, कि जी अकाउंट पेबल्स को हम किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज करें। अब अकाउंट पेबल हमें सोर्स तो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हम उस पैसे को यूज कर रहे हैं और अपने बिजनेस को ऐसा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हमें एक तरह से मिल रही है अकाउंट्स पेबल के थ्रू। हमने क्रेडिट पे चीजें ले ली है, उससे हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें वो पेमेंट्स भी करनी है। अगर हम लोगों को पैसे वापस नहीं करेंगे, टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे, तो देन वील एंड अप इन यू नो हमारे लिए फिर जो चीजों को मैनेज करना है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो दीज आर द फोर एरियाज ऑफ फोकस इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कि जी आपने अपनी कैश को प्रॉपरली कंट्रोल करना है, इन्वेंट्रीज को प्रॉपरली मैनेज करना है, अकाउंट रिसीवेबल्स को
सही तरीके से हैंडल करना है और अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है. Okay, now when we look at the pattern of the current asset investments of different companies, so we come across these three different patterns. हमें तीन तरह की कंपनीज नजर आती हैं जब हम कंपनीज को एनालाइज करते हैं. कुछ कंपनीज हैं जो कि रिलैक्स्ड करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फॉलो करती हुई नजर आती हैं. अच्छा, रिलैक्स्ड करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है कि आपने यू आर होल्डिंग रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, marketable securities and inventories, and a liberal credit policy resulting in a high level of receivables. ठीक है, यानी वो कंपनीज जिसमें कैश का प्रोपोर्शन हाई है इन देयर बैलेंस शीट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज काफी उन्होंने रखी हुई हैं, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेंट्रीज की लेवल हाई है उन कंपनीज का, और अकाउंट रिसीवेबल्स का लेवल हाई है. तो जब हम ऐसी वो कंपनीज जिसमें ये सारी चीजें हाई नजर आती हैं तो हम कहते हैं कि ये कंपनी जो है ये रिलैक्स्ड करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फॉलो कर रही है. ठीक है ना, इसने अपनी चीजों को इतना टाइट नहीं किया हुआ. अच्छा, फिर इसका जो दूसरा एक्सट्रीम है वो है जहाँ पे ये चीजें बहुत कम है, उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. रिस्ट्रिक्टेड करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या है कि यू आर होल्डिंग कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल्स एट अ लो लेवल. ठीक है, आपने कम अपनी उनमें पैसा जो है आपने कम रखा हुआ है, कम इन्वेस्टमेंट की हुई है, बैलेंस शीट में उनका प्रोपोर्शन कंपेयर टू अदर एसेट इज लो. ठीक है, रिलैक्स में द प्रोपोर्शन ऑफ दीज करंट एसेट इज हाई. कंपोजिशन ऑफ बैलेंस शीट में अगर आप देखें, अपने एसेट्स की कंपोजिशन में देखें तो इनका प्रोपोर्शन हाई नजर आता है. रिस्ट्रिक्टेड के अंदर इन्हीं एसेट्स का, करंट एसेट्स का प्रोपोर्शन हमें कम नजर आता है. इन दोनों के बीच में दरमियान में जो है दैट इज मॉडरेट करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कि बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड भी नहीं है और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, इट इज समवेयर इन बिटवीन. अच्छा, अब ये क्या है, ये किस बेसिस पे हमने कहा कि ये रिलैक्स्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है या मॉडरेट है? हमने एक पैनल ऑफ कंपनीज इकट्ठा किया, लेट्स से एक इंडस्ट्री को हमने ले लिया, शुगर इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल. अब शुगर इंडस्ट्रीज की हमने एक इंडस्ट्रियल एवरेज बना ली और उसकी बेसिस पे फिर हमने देखा कि कौन सी कंपनीज हैं जहां पे जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो रिस्ट्रिक्टेड करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फॉलो करती नजर आती हैं, और इन दोनों के बीच में कुछ हमें मॉडरेट करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फॉलो करती हुई कंपनीज भी नजर आती हैं. ओके, नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वर्किंग कैपिटल. जीरो वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि आपकी इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल्स, सम ऑफ योर इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल्स अपनी बैलेंस शीट में अगर आप देखें, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल को, इसमें से अकाउंट्स पेबल को माइनस करते हैं, तो द रिजल्ट इज जीरो. ठीक है, अगर ये सिचुएशन है तो हम कहते हैं कि द कंपनी हैज अ जीरो वर्किंग कैपिटल. इसका मतलब ये है कि इसकी इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल्स कहाँ से आ रहा है. ठीक है, इन्वेंट्री में जो उसने पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, और जो उसका पैसा अकाउंट रिसीवेबल्स में जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? इट इज फाइनेंस्ड बाय अकाउंट्स पेबल. ठीक है, तो ये एक बड़े अच्छी आप कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है कि कंपनी जो है अकाउंट्स पेबल से अपने दोनों चीजें, अपने करंट एसेट्स को मैनेज कर रही है, उसका अपना पैसा इसमें ब्लॉक नहीं हो रहा. सो दिस इज वेरी very good inventory management, but not the best. Best is this one where we have negative working capital. Negative working capital का मतलब ये है कि जी आपकी इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल्स जो हैं वो आपके अकाउंट्स पेबल जो हैं आपके इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल से भी ज्यादा हैं. ठीक है, आपने जो बेसिकली आप दूसरे जो अपने अकाउंट्स पेबल हैं उनसे आप ना सिर्फ अपनी इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल मैनेज कर रहे हैं बल्कि स्टिल यू हैव सरप्लस. तो एग्जाम्पल हेयर इज ऑफ डेल कंप्यूटर्स एंड amazon. अगर आप डेल की एग्जाम्पल ले लें तो इट्स अ ऑनलाइन कंप्यूटर्स कंपनी. ठीक, ऑनलाइन कंप्यूटर स्टोर. तो जो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल दिया वो ये बिजनेस मॉडल दिया डेल ने कि जी उनकी कोई ऑनलाइन उनके फिजिकल स्टोर्स कोई नहीं है.
एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ठीक है। आप उनकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहां पे उन्होंने कुछ अपनी कस्टमाइज, कुछ उन्होंने जो है स्टैंडर्ड वर्जन्स ऑफ द लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स वहां पे रखे हुए हैं कि जी ये लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है, इसकी ये प्राइस है, इफ यू वांट टू परचेज आप पे करें, एंड द प्रोडक्ट विल बी शिप टू यू विद इन 1 वीक, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप इस मॉडल को देखें, बिजनेस मॉडल को देखें, तो क्या हो रहा है कि जब क्लाइंट ने वो सिलेक्ट किया प्रोडक्ट, तो उसने पेमेंट कर दी, ठीक है। जो उसने ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म फिल किया, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि ऑनलाइन ऑर्डर के फॉर्म को फिल करेगा, अपनी डिटेल्स देगा, शिपिंग एड्रेस देगा, और फिर उसकी प्राइस आ जाएगी, चेकआउट पे चले जाएंगे, चेकआउट के ऊपर जाके उसकी प्राइस, टैक्स, सारी चीजें आ गई, शिपमेंट चार्जेस आ गए। जब वो उसको अपने ऑनलाइन स्टोर से चेकआउट करता है कि जी ओके, उसने ऑर्डर को ओके कर दिया, तो नेक्स्ट थिंग दैट पॉप अप्स, वो उसकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आ जाती है कि जी अब आप इसकी पेमेंट कर दें, यू हैव टू पे इन एडवांस टू गेट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब जब आप उसकी पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट तो रिसीव हो गई कंपनी को। अच्छा, कंपनी ने क्या करना है, वंस द कंपनी हैज रिसीव्ड योर पेमेंट, द कंपनी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऑर्डर। उससे पहले उसने कोई चीज नहीं बना के रखी हुई, उसने सिर्फ इतना काम किया कि उसने अपने सप्लायर्स को लाइन अप किया हुआ है, और उनके साथ उसकी ये जो है अरेंजमेंट है कि जी एज सुन हमें कोई ऑर्डर मिलेगा हम आपको पास ऑन करेंगे, और आपने हमें विद इन 2 to 3 डेज वो प्रोडक्ट डिलीवर करना है। सो 2 to 3 डेज वो प्रोडक्ट इनको डिलीवर हो जाएगा, एंड विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगा। तो हुआ ये कि कंपनी ने पैसे पहले ले लिए और बाद में उस पर काम किया, तो ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का एक एग्जाम्पल है उसके अंदर। सो हेयर पेमेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस बिफोर द प्रोडक्ट इज शिप्ड, और पेमेंट टू सप्लायर्स, जैसे मैंने आपको बता दिया, सप्लायर्स, these companies are able to use other people's money to run much of their day to day business। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये एक आइडियल सिचुएशन है कि जहाँ पे आप इस तरह का बिजनेस मॉडल लेकर आ रहे हैं कि जहाँ पे आपको पैसा पहले मिल रहा है, और उसके उस पैसा मिलने के बाद आप उसको प्रोडक्ट को डिलीवर कर पा रहे हैं। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हवाले से विल बी कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट, जिसमें हमने पहले बताया था कैश मैनेजमेंट की बात करेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट की बात करेंगे, अकाउंट पेबल की मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो वो सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी लेते हैं, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी, स्की इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी है जो कि हम जिसको लेके चलेंगे, इस कंपनी को हम साथ लेके चलेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से अकाउंट अपनी जो है वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रही है, एंड दैट विल गिव यू एन आइडिया कि जी क्या कंपनी कर रही है और क्या होना चाहिए, ठीक है, हाउ द कंपनी कैन इम्प्रूव द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब उसकी करंट सिचुएशन ऑफ द कंपनी इज गिवन इन दिस स्लाइड कि जी करंट रेशियो हमने कवर की थी पहले। करंट रेशियो जो है उसकी कंपनी की क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज 1.75, इंडस्ट्री एवरेज 2.25, डेट टू एसेट रेशियो दी हुई है 58.76, 50% इंडस्ट्री एवरेज। टर्नओवर ऑफ कैश एंड सिक्योरिटीज, टर्नओवर ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं तो 16 टाइम्स है, वेयर इंडस्ट्री एवरेज 22 टाइम्स। डे सेल्स आउटस्टैंडिंग 46 डेज है, ऑलमोस्ट 45.63, और इंडस्ट्री एवरेज 32 है। इन्वेंट्री टर्नओवर 4.8, इंडस्ट्री एवरेज इज 7। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर 11.35, industry average 12. Total asset turnover, uh, total asset turnover is 2.08, whereas industry average is 3 times. Profit margin 2.07, industry average 3.5. Return on equity 10.45, and industry average is 21. Okay, now just by looking at these figures, हमें ये नजर आता है कि कंपनी को कुछ इश्यूज यहाँ से ही हम फिगर आउट कर सकते हैं, जैसे करंट एसेट्स के हवाले से the company position is not very good, ठीक है, as compared to industry average. Similarly, you can see turnover of cash and securities भी अच्छी नहीं है, इंडस्ट्री से नीचे आ रही है। डे सेल्स आउटस्टैंडिंग ये भी एक इनका काफी हाई है, 46 डेज कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज। इन्वेंट्री टर्नओवर इज स्लो, ठीक है, 4.82 कंपेयर टू 7 टाइम्स। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर ठीक है, फिक्स्ड एसेट, इसका मतलब फिक्स्ड एसेट्स की मैनेजमेंट का इतना इशू नजर नहीं आता इस कंपनी में। टोटल एसेट टर्नओवर
में थोड़ा इशू है, और उसमें फिर हमें ये पता चलता है, अगर फिक्स्ड एसेट्स में इशू नहीं है तो फिर ये टोटल एसेट टर्नओवर में जो इनकी जो शॉर्टफॉल आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द करंट एसेट्स। प्रॉफिट मार्जिन इनका कम है। अब प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह भी बाज़ाहिर वो ऊपर वाली रीजंस लिंक हो रहे हैं इसके साथ, कि जी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा, और दैट वन ऑफ द रीजन कुड आल्सो बी कि जी उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी इज आल्सो वेरी लो। ठीक है जी, तो इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि जी किस तरीके से कंपनी अपने चीज़ों को मैनेज कर रही है और किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए। How does Key's current assets investment policy compare with its industry? Now, current assets investment policy जो हमने पहले स्लाइड में डिस्कस कर लिया, किन चीज़ों में नजर आ रही है, that is reflected in current ratio, ठीक है, turnover of cash and securities, inventory turnover and days sales outstanding. These ratios indicate Key has large amount of working capital relative to its sales. तो कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रही है जी कंपनी? वो जो तीन हमने ऑल्टरनेट पॉलिसीज डिस्कस की थी, रिलैक्स्ड, रिस्ट्रिक्टेड एंड moderate. So this company's key appears to be following relaxed current asset investment policy. So the problem is that as I mentioned in the previous slide कि जी कंपनी की inefficiency तो हमें नजर आ रही है as far as account receivable management is concerned, cash and inventory turnover की बात है, cash and सिक्योरिटीज टर्नओवर की बात है, उसमें भी इशू नजर आ रहा है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर में भी प्रॉब्लम है, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग के अंदर भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है। A conservative policy may be appropriate if it leads to greater profitability। ठीक है, अगर तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जी कंपनी की पॉलिसी ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर स्की इज नॉट एज प्रॉफिटेबल एज द एवरेज फर्म इन द इंडस्ट्री। ठीक है, वो हमने देख लिया कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, इसका प्रॉफिट मार्जिन भी लो है। तो दिस सजेस्ट दैट द कंपनी हैज एक्सेसिव करंट एसेट्स। तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद द करंट एसेट मैनेजमेंट। और जो इस चैप्टर का टॉपिक भी था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसमें हमने बात की थी कि जी करंट एसेट्स को अगर हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे देन इट इज गोइंग टू एडवर्सली इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ से हमें थोड़ा सा उसका भी आइडिया मिल रहा। अच्छा, हमने करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखी थी, अब हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की पॉलिसी देखते हैं। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मतलब ये कि हमारा वर्किंग कैपिटल का पैसा कहाँ से आएगा, हमारे करंट एसेट्स जो है वो फाइनेंस किस सोर्स से हो रहे हैं। तो देयर आर थ्री डिफरेंट पॉलिसीज अवेलेबल हेयर। वन इज मॉडरेट। अच्छा, मॉडरेट में हम क्या करते हैं, वी मैच द मैच्योरिटी ऑफ द एसेट्स विद द मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंसिंग। क्या मतलब हुआ कि हम अपने करंट एसेट्स को फाइनेंस करने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर करंट लायबिलिटीज। तो ये मॉडरेट है कि हम दोनों को मैच कर रहे हैं, करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए करंट लायबिलिटीज का सहारा ले रहे हैं। एग्रेसिव में क्या कर रहे हैं, एग्रेसिव में हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जरिए से वी आर फाइनेंसिंग परमानेंट एसेट्स। ठीक है, सो यू कैन सी द अप्रोच हेयर कि जी आपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ली है, शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हैं, और कर क्या रहे हैं आप, उससे आप अपने परमानेंट एसेट्स को फाइनेंस कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं दिस इज एग्रेसिव मैनेजमेंट। जैसे हमने पीछे भी एक दफा बात की थी कि जी मैनेजर्स की जो है वो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एग्रेसिव, इट कैन बी कंजर्वेटिव। तो एग्रेसिव मैनेजर्स होते हैं रिस्क टेकर्स होते हैं। ठीक है, ये भी रिस्की अप्रोच है कि आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जरिए से अपने लॉन्ग टर्म या परमानेंट एसेट्स को फाइनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच इज यू आर यूजिंग परमानेंट कैपिटल फॉर परमानेंट एसेट्स, फॉर परमानेंट एंड टेम्परेरी, यानी आप लॉन्ग टर्म अपना कैपिटल ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स ले रहे हैं, उससे आप सारे ही अपने एसेट्स को फाइनेंस कर रहे हैं, चाहे वो आपके परमानेंट एसेट यानी वो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं या आपके करंट एसेट्स हैं। ऑल ऑफ देम आर बीइंग फाइनेंस्ड थ्रू परमानेंट कैपिटल। लॉन्ग टर्म लोन से आप अपने सारे एसेट्स को फाइनेंस करें, तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच है। ठीक है, आप रिस्क नहीं कैरी करना चाहते, तो ये आपको इस
डायग्राम के अंदर भी वही तीनों अप्रोचेस यहाँ पे नजर आ रही हैं कि अब आपके ये फिक्स्ड एसेट्स हैं और ये आपके करंट एसेट्स हैं। तो अगर आप ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच हो जाएगी। और अगर आप मैच करते हैं, ठीक है, यानी शॉर्ट टर्म लोन्स के आप टेम्पररी करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म लोन लेके आप अपने करंट एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं, तो ये आपकी जो है वो मॉडरेट अप्रोच है। और अगर आप शॉर्ट टर्म लोन से परमानेंट करंट एसेट्स को फाइनेंस करना शुरू करेंगे, यानी लोअर डैश लाइन, ये जो डैश लाइन है, अगर आप इसको लो करते जाएंगे, यानी आप अपनी शॉर्ट टर्म लोन्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं और उससे आप बाकी एसेट्स को भी फाइनेंस करते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप एग्रेसिव मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो कंजर्वेटिव में हमने कहा था कि जी सारे ही, आप जितने भी आपके एसेट्स हैं, आप इससे मैनेज करें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से। यू हैव जीरो शॉर्ट टर्म डेट। कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग के अंदर शॉर्ट टर्म डेट आपका जीरो है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जिसमें स्टॉक, बॉन्ड्स, स्पॉन्टेनियस करंट लाइबिलिटीज, ये सारे आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जिनसे आप अपने सारे एसेट्स को फाइनेंस करें, फिक्स्ड एसेट्स भी और परमानेंट करंट एसेट्स भी, और जो आपके टेम्पररी करंट एसेट्स हैं उनको भी। अच्छा जी, अब एट टाइम्स द मैनेजर्स हैव टू चूज कि जी हमें शॉर्ट टर्म लोन लेना है या लॉन्ग टर्म, कौन सी हमारे लिए, विच वन वुड बी मोर सुटेबल। अब दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन कि जी हमें शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहिए या लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहिए, द मैनेजर्स शुड look at the look into the advantages and disadvantages and then decide accordingly. ओके, शॉर्ट टर्म लोन की अगर हम बात करते हैं तो एडवांटेज क्या है शॉर्ट टर्म लोन जनरली, ये है कि इट कैरीज अ लोअर इंटरेस्ट रेट विच इज एन एडवांटेज, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन की प्रोसेसिंग इन जनरल इट इज फास्ट, ठीक है। आपने 6 महीने के लिए, साल के लिए लोन लेना है तो वो इतने ज्यादा उसमें प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जल्दी प्रोसेस हो जाता है, जल्दी आपकी जो है ना, यू आर एबल टू गेट द लोन इन अ स्पीडी मैनर। ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। अच्छा, एक और इसका एडवांटेज है कि इट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन स्विचिंग टू लॉन्ग टर्म लोन इज पॉसिबल। आपने एक लॉन्ग टर्म, आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया था और जैसे ही वो खत्म हुआ फिर आपको जरूरत है, आप लॉन्ग टर्म पे शिफ्ट हो सकते हैं, यानी डिपेंडिंग ऑन द रेट्स इन द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपको सूट करता था, आपने शॉर्ट टर्म ले लिया, फिर आपको ये पता लगा कि यार अभी तो लॉन्ग टर्म लोन हमें एक अच्छे रेट पे मिल रहा है, तो फिर आप शॉर्ट टर्म लोन को जल्दी पे ऑफ करके यू कैन क्विकली स्विच ऑन टू द लॉन्ग टर्म लोन। सो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का एक रीजन ये भी है कि जब आपने लोन लिया था तो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द लेंडर्स। लेंडर्स आपके ऊपर कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं कि जी आप इस लोन से क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, विच इज द केस ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, वो भी हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। सो बेसिकली दीज आर द थ्री एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, कि इसमें इंटरेस्ट रेट्स आर जनरली लो, इट इट इज प्रोसेस्ड इन अ स्पीडियर मैनर, स्पीडी मैनर, जल्दी आप प्रोसेसिंग हो जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी है, यू कैन स्विच टू लॉन्ग टर्म लोन्स। डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि जी अ, आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया, उस वक्त रेट अच्छा मिल रहा था, आपने शॉर्ट टर्म ले लिया, जब वो लोन मैच्योर हो गया अब आपको दोबारा लोन लेने की जरूरत है, बट एट दैट टाइम इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, ठीक है। तो यू विल एंड अप इन बोरोइंग एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो जो आपने टेम्पररी या आपने शॉर्ट टर्म फायदा उठाया था वो आपका यहाँ से सारा उसका वो फायदा जो है खत्म हो जाएगा, इसलिए कि अब आपको वो रेट उससे ज्यादा पे मिल रहा है। वो शॉर्ट टर्म आपको गेन हो गया लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फायदा नहीं हो सका। और एक और प्रॉब्लम ये आता है कि जी आपने शॉर्ट टर्म ले लिया, उस वक्त सिचुएशन अच्छी थी मार्केट की, मार्केट वाज बूम एट दैट टाइम, आपको मिल गया, लेकिन जब अब का वो मेच्योर हो गया, अब आपको दोबारा लोन लेने की जरूरत है, तो जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा चुकी है। उसका प्रॉब्लम ये होगा रिसेशन का कि उस बोरोअर को ही विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिन्यू द लोन कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन के अंदर फिर आपको इशू ये आ जाता है कि जी आपको
यू विल नॉट, आपके लिए फिर वो लेंडर ढूंढना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो कीपिंग इन माइंड दीज एडवांटेजेस, short these advantages of this short term loans motivate the managers to go for short term loans, like, and they have to be aware of these disadvantages as well. On the other hand, if we look at the advantages and disadvantages of long term loan, सबसे पहले जो एडवांटेज हमें शॉर्ट टर्म लोन में नजर आता था, लोअर इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नॉर्मली हाई होता है। वाई? लॉन्ग टर्म लोन है, उसके अंदर रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क की वजह से फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई हो जाता है। लॉन्ग टर्म लोन के लिए फिर जो है उसकी प्रोसेसिंग भी काफी स्लो है, इसलिए कि द ब्लेंडर कैरीज आउट अ डिटेल्ड स्क्रूटनी। उसने फिर आपकी जो है ना अच्छी, द ब्लेंडर विल मेक श्योर कि जी उसका जो है ना पैसा इज सिक्योर्ड, तो उसके लिए फिर वो सारे उसकी डिटेल्ड स्क्रूटनी करने के बाद ही उसको अप्रूव करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन में। ठीक है, आपने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया, लेट्स से 5 इयर्स के लिए था, आपने वो ले लिया, बाद में इंटरेस्ट रेट गिर गए मार्केट के अंदर, यू विल नॉट बी एबल टू स्विच। अगर उसके लिए आप, यानी ये नहीं है कि आप वो लॉन्ग टर्म लोन जल्दी पे कर सकें, वो तो अब आपको 5 ईयर के बाद ही पे करना है, तो ये आप उस लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट से फायदा नहीं उठा सकेंगे। एक और प्रॉब्लम इसके साथ ये आती है कि रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देते हैं लेंडर्स। लॉन्ग टर्म लेंडर जो है वो अपने पैसे की अ, उसमें सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है, तो फिर वो कुछ ऐसी कंडीशंस भी, जैसे हम देखेंगे पाकिस्तान आईएमएफ वगैरह से लोन लेता, तो आईएमएफ फिर अपनी कंडीशंस भी साथ लगाता है कि जी आप इस लोन से क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और क्या आपको चेंजेस लानी होंगी हमारे लिए ताकि हमारा पैसा सिक्योर हो सके। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस भी उसमें आ सकती हैं। The advantage of long term loan is that it is not affected by rising interest rate। उस सूरत में फायदा हो सकता है कि आपने इंटरेस्ट रेट, आपने लोन लिया उस वक्त इंटरेस्ट रेट कम था, 5 साल का लोन आपने लोन ले लिया, बाद में इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए, तो यू विल नॉट बी इफेक्टेड बाय दैट। एंड अनदर एडवांटेज इज कि जी आपको तो 5 साल के लिए लोन मिल गया, यू एंजॉय विद दिस, कैरी आउट योर बिजनेस विद इट, आपको दोबारा उसको रिन्यू करवाने की कोई जरूरत नहीं है। Okay, so here I will take a little break. Part 1 of the lecture completes here. मैं कोशिश करूंगा कि आपके लेक्चर्स थोड़े थोड़े ब्रेक्स के साथ आ जाएं, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एक लंबा लेक्चर जो है ना, घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर सुनना, फिर उसमें जो है वो कंसंट्रेशन भी नहीं होती और उसके अंदर जो है थोड़ा सा बोरियत भी आ जाती है। तो आई ट्राई टू मेक इट इनटू 2 और 3 पार्ट्स, ताकि वो ब्रेक के साथ आप उसको एब्जॉर्ब भी कर सकें और इंटरेस्ट के साथ सुन भी सकें। तो दैट्स ऑल फॉर द पार्ट 1 ऑफ टुडेज लेक्चर। द रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन विल बी continued in the part 2 and part 3 of this lecture. Thank you very much.